Hello everyone, good morning guys, welcome back to the channel. Today we are going to study subject geography topic 5. Guys, before starting this, at the previous we were studied about the endogenetic movement and exogenetic. Guys, in endogenetic we studied about whatever the process will happen, it is of inside. But in exogenetic we have seen it is of exterior. Exo it means exterior, right? So we have seen like what are the processes happening, we can easily notice or we can easily say like exogenetic process. Now today's topic is of precipitation. Guys, you and everyone knows about the precipitation. So what is precipitation? Guys, precipitation it means water that falls from the clouds towards the ground, especially in the form of yes, rain or as snow is known as the precipitation, है ना? Precipitation क्या है? हमारा जो precipitation मतलब एक तरफ से हम बोल सकते हैं एक बारिश किसी भी फॉर्म में होता है, वो रेनफॉल में हो सकता है, स्नो के फॉर्म में, और कभी कभी हेलस्टोन हो जाता है, कभी कभी पत्थर गिरता है, हाँ वो होता है, फाइन. So related to this, like definition we having which is given on the board, हम लोग start करते हैं, and after that it's also given about what is precipitation, जो मैंने आपको अभी बता दिया. So it's given in written form. So we'll start from the one by one. देख लेते हैं. ये होने के बाद we having the few images related to this. जैसे कि अब इससे related क्या है? So हमने देखा अभी जैसे fog है, frost है, dew है ना? So ये images आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है. So हम देखेंगे like dew है तो कैसे है, frost है तो कैसे है, और अगर वो fog है तो कैसे है. So first we'll start from the definition of precipitation. So let's start now. Come on the board. So look here. So here it's given of definition of precipitation. So water that falls from the clouds towards the ground, especially as rain or snow. So I hope guys you got the point, like what is precipitation, इसका definition क्या है, precipitation का आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसको बोलते हैं precipitation. वही पानी, वर्षा जो कहाँ से फॉर्म होता है क्लाउड से, और कहाँ पहुँचता है वो हमारे ग्राउंड, धरती पे पहुँचता है. बारिश के फॉर्म में भी हो सकता है, स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है. ओके, नाउ लुक हियर, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. अब एक्चुअल देखते हैं कि एक्चुअली प्रेसिपिटेशन क्या है. सो प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर reach back to earth from the atmosphere. Once again, precipitation is the process by which all forms of water reach back to earth from the atmosphere. See guys, we know well everyone, even I, मैंने आपको बताया क्या, मुझे आपको या सबको ये पता है precipitation है क्या नहीं. See, अपने को पता है वाटर पेपर होता है, राइट? हाँ, यस, वेरी गुड. वाटर पेपर होता है, वो गैसेस के फॉर्म में कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाते हैं. क्या फॉर्म होता है, क्लाउड फॉर्म होता है. एंड आफ्टर फॉर्मिंग द क्लाउड क्या होता है, वो एक साइकिल है, फिर से वो रेन की तरह नीचे की तरफ आता है ना. ये आपको पता है, ये साइकिल होते ही रहता है. So, इसमें भी वही बताया आपको कि प्रेसिपिटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर रीच बैक टू अर्थ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. इट मीन्स ये क्या बता रहा है कि ये एटमॉस्फेयर से वापस कहाँ पे आता है, हमारे अर्थ पे ही आता है. Next, precipitation occurs in the form of rainfall. These things we were already seen in gas. Definition में हमने देखा कि precipitation किस form में वो नीचे की तरफ आता है. So precipitation occurs in the form of either rainfall, frost, hail, and dew. So I told you at the beginning कि precipitation may be occurs in the different form of, that is either in rainfall, frost, hail or as dew. So among all field means ये सारा चीजों के अलावा among all rainfall and snowfall contribute a significant amount of water. Once again, ये सारी चीजों में हम देखेंगे. सो जो रेनफॉल है एंड स्नोफॉल इस कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, क्या कंट्रीब्यूट करता है, वाटर.
Okay, so look here guys, we have seen what is definition of precipitation, also we have seen what is precipitation, and I think we got the point like precipitation है क्या, जो डिफरेंट फॉर्म में हमारे ग्राउंड हमारे धरती पे आता है. फाइन, आप ये प्रिसिपिटेशन से ये प्रोसेस है, हमें पता है, हमें वी वर ऑलरेडी स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड रिलेटेड टू दिस पॉइंट, इवन वी वर स्टडीड इन 7th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पॉइंट, है ना. इससे रिलेटेड हम 8th स्टैंडर्ड 7th और 6th में भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये प्रेसिपिटेशन है क्या और ये किस तरीके से ग्राउंड पे आता है. सो लेट्स बिगिन, हम वापस से वही करेंगे क्या है ये. जी, हमारा वाटर पेपर होता है. अब आपको पता है कि वाटर पेपर कब होता है, सब सीजन में होता है, बट डिपेंड्स इफ वी हैविंग समर सीजन. अगर समर सीजन है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, राइट, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सो वहां पे वाटर पेपर ज्यादा होता है. बट विंटर सीजन अब सी आई थिंक आपको क्वेश्चन मार्क हुआ होगा, ठंडी है तो टेम्परेचर लो होता, वाटर पेपर होता ही नहीं, राइट. ना, इट्स रॉन्ग गाइस. विंटर है, सी ठंडी है तो क्या सनराइज ही नहीं होता है ना. सो वहाँ पे भी वाटर पेपर होता है, बट लेस कंपेयरिंग टू दी समर सीजन. डन, ओके. सो जो वाटर पेपर होता है एक गैस फॉर्म होता है. वो गैस फॉर्म कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है. सी ये स्ट्रीम है, ऊपर की तरफ जाता है. अब ऊपर की तरफ जाने के बाद से हमारा जो एटमॉस्फेयर है ऊपर की तरफ जब जाएगा तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यस, वेरी गुड गाइस, लो होगा. सो जब लो होगा सो ये क्या होगा, ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो गैस ऊपर की तरफ गया, लो होने के टेम्परेचर से कांटेक्ट किया, सो लो मिला टेम्परेचर उसको, सो क्या होगा, वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे की तरफ आएगा. सो हमारे मिडल में क्या होता है, एयर वगैरह होता है, हवा होता है. अगर उस बूंदों को वो रोक लिया सो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता है. बट कभी कभी वो ड्रॉपलेट और हवा पे रुक नहीं पाता है, इसके लिए वो बूंदे क्या हो जाती है, नीचे धरती पे आ जाती है. डन, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू, शीत जिसको आप बोलते हो हिंदी में. डन. सो सी गाइस, नाउ रिलेटेड टू दिस वी हैविंग द पिक्चर. सी ये जो पिक्चर हमारे पास तो है लेकिन आपके पास भी है, यू नो कैसे, आपके टेक्स्ट बुक में तो दिया है. सो नाउ लेट्स गाइस, हम लोग टेक्स्ट बुक से वो इमेज देखें एंड देन वी विल स्टडी रिलेटेड टू दैट. ओके, सो कम ऑन. Look here guys, the first image is given here. यहाँ पे पहला वाला पिक्चर जो है आपको दिया हुआ है. सी मैंने आपको बताया ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके लिए तो बोलिए ये इमेज हमारे पास भी है एंड ऑल्सो दिस इमेज इज हैविंग विद यू ऑल्सो. सो लुक हियर, अब ये जो पत्तों पे आपको दिख रहा है पॉइंट 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 कुछ ड्रॉपलेट के फॉर्म में है ना, दिस फॉर्म इज नोन एज ए ड्यू पॉइंट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यू बोलते हैं. अब ये कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो वाटर गैसेस होता है, वाटर वेपर जो होता है, वो वाटर वेपर कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ मूव होता है, राइट. अब ऊपर की तरफ जब मूव होता है सो वो किससे कांटेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर. वहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है. सो लो होने की वजह से ये जो स्ट्रीम होता है गैस वो क्या होता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे की तरफ आता है. सी गैस, रिलेटेड टू दिस वी कैन ऑल्सो डू द एक्सपेरिमेंट विद इन आवर हाउस ऑल्सो. इससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हैं. सी गाइस, आप कुक करते हो, चावल वगैरह होता है. सो आप चावल जब कुक होता है बंद होने के बाद हम उसके ऊपर लिड रखते हैं. लिड इट मीन्स ढक्कन रखते हैं. सो से आप थोड़े टाइम के बाद जब ढक्कन को उठाते हो सो आप देखते हो उस ढक्कन उस लिड के प्लेट पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में पानी रहता है, और जब ढक्कन उठाते हो पानी नीचे ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिर जाता है. सो सी जब आपका अंदर का चावल गर्म होता है सो वाटर वेपर, वो वेपर क्या होता है, ऊपर की तरफ मूव होता है, बट आपने लिड रख दिया सो वो मूव होके कहाँ जाके स्टिक हो गया था, आपके लिड पे स्टिक हो गया था. जब वो कांटेक्ट किया, ठंडा मिला उसको, जब लिड आपका ठंडा हुआ सो आपने जब ढक्कन को उठाया तो पानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में कहाँ गया, नीचे चले गया. सो हैज द सेम वे हियर आल्सो हैपनिंग द सेम प्रोसेस. यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा. जितना ऊपर की तरफ मूव होगा गाइस वहाँ पे हमारा टेम्परेचर लो होता है. ठीक है, आप टेम्परेचर लो होने की वजह से वहाँ पे जब रिटर्न होता है ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो जाता है और वो नीचे की तरफ मूव होने लगता है. ठीक है, ये है. नेक्स्ट वी हैविंग द सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये. लुक किया गाइस, ये आपको कुछ फ्रीजिंग पॉइंट जैसा दिख रहा है क्या, बर्फ जैसा दिख रहा है क्या. इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट, FROST, फ्रॉस्ट, है ना. ये कब होता है गाइस, ये फ्रीजिंग होने की वजह से. फ्रीजिंग से गाइस आपका पानी नॉर्मल होता है, लेकिन जब आप फ्रीज में रखते हो तो कुछ आइस फॉर्म में हो जाता है ना.
यहाँ पे टेम्परेचर लो होने की वजह से ये जो बूंदे होती है ना, वो बूंदे क्या होती है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होना, जम जाना। सो ये कब होगा, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। वेरी गुड। लो टेम्परेचर की वजह से जो पानी था वो क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। सो फ्रीज होने में कुछ ऐसा दिखता है आपको। डन। फ्रीज कुछ ऐसा नहीं। सी गाइस, हमें पता होगा लो टेम्परेचर, वी वर ऑलरेडी स्टडी। मैंने आपको बताया कि हमने ये चीजें स्टडी किया था, कभी 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, रिलेटेड टू द वर्ल्ड मैप। ऑल्सो वी हैव सीन द इक्वेटर लाइन as well as Tropic of Cancer and Capricorn, and we have seen the reason behind, like equator पे we having the high temperature comparing to the Tropic of Capricorn, above the Tropic of Capricorn, above the Tropic of Cancer and below the Tropic of कैप्रिकॉर्न। सी, हमने इक्वेटर लाइन से रिलेटेड पढ़ाई किया था, स्टडी किया था कि इक्वेटर लाइन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे हम देखेंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर की लाइन। सो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है कूल होता है, किसके कंपेयर में, इक्वेटर लाइन के कंपेयर में। We have also studied related to this the three zones. One is toroid zone, second is temperate zone, and the third one is freeze zone. हमने ये study किया था 8th standard में. So in this we have seen, see, toroid zone is of full of highly temperature comparing to the temperate and freeze zone. जो हमारा टॉरेट जोन होता है फुल टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है वहाँ पे, किसके कंपेयर में, टेम्परेट और फ्रीज जोन के कंपेयर में। जो टेम्परेट जोन होता है गाइस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, मिक्सअप होता है। टेम्परेट जोन में टॉरेट जोन की इतना गर्मी नहीं होती है। बट फ्रीज जोन वी कैन से कि यहाँ वी हैविंग द लेस ऑफ टेम्परेचर बट हाई कोल्ड। वहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर होता है बट ठंडी ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेस ऑफ सन। किसकी वजह से, सन का रेस बहुत ही ज़्यादा स्लैंटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा तिरछा होने की वजह से जो हमारा फ्रीज जोन होता है वहाँ पे रेस नहीं पड़ पाता है, तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है। सब ठंडी ज़्यादा होगा, सी टेम्परेचर अगर लो होगा तो कुछ इस तरीके से फ्रीज हो जाता है चीज़ें। अब चीज़ें मतलब बूंदे, ठीक है। सो ये इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं। एंड लुक हियर द थर्ड इमेज वी हैविंग। अब ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। सी, वी हैव सीन द टू इमेजेस, वन इज ऑफ ड्यू, सेकेंड इज ऑफ फ्रॉस्ट, वेरी गुड, एंड द थर्ड वन ये अभी जो देख रहे हैं हम इसको क्या बोलते हैं, फॉग। दिस वन इज ऑफ माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक गैस, ये बड़े ही बारीक होता है, जो हम अपनी आई से बहुत ही ज़्यादा देख नहीं सकते इसको। ये बोलते हैं ना, कुछ धुंधला धुंधला जैसा दिखता है। सो ये माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉग टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉग टाइप बोलते हैं। ओके फाइन। सो वी हैव सीन द 3 पिक्चर ऑफ दिस रिलेटेड टू द प्रेसिपिटेशन। हमने 3 पिक्चर देख लिया, ड्यू का देखे, फ्रॉस्ट का देखे, एज वेल एज वी हैव सीन द फॉग। नाउ गाइस कम टू द बोर्ड। So we have seen related to this few pictures, right? हमने पिक्चर भी देखा इससे बेस पे या इसके रिलेटेड में। Now guys, okay. Now apart from this, we have also studied related to the like land and the water. So हमने इसमें क्या देखा था, like कि 71% में covered by the land on the surface, right? But rest is covered by the land. So इसके अंदर हमने ये देखा कि 71% जो है हमारे अर्थ सरफेस पे वो पानी से घिरा हुआ है, और जो बचा है 29 वो लैंड है जिसपे हम सब रहते हैं, राइट। सो सी गाइस, रिलेटेड टू दिस वी हैविंग पैराग्राफ व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। उसमें क्या दिया है कि जो है 70.8% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। सी, हाँ वही हम 71 बोलते हैं, है ना, वही 71 बोलते हैं। सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इससे रिलेटेड हमने कुछ स्टडी किया था, लाइक कि कॉन्टिनेंटल हैज वेल एज दी ओशनिक क्रस्ट। हमने क्या स्टडी किया था, जैसे मैंने बताया आपको कि 71% हमारा पानी से घिरा हुआ है हमारी जो सरफेस है, और जो बचा हुआ 29 वो अर्थ लैंड है। ओके, सो इससे रिलेटेड हमने स्टडी किया था 8th स्टैंडर्ड में, ओशनिक से और कॉन्टिनेंटल से, ठीक है। सो इसमें क्या, कॉन्टिनेंटल क्या होता है, लाइक जमीन है ना, कॉन्टिनेंटल लैंड से कनेक्ट। सो उसमें हमने क्या स्टडी किया था, लाइक कि जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे हाई होता है, बट जो ओशनिक होता है वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है ना। अब कैसे लो होता है, कैसे होता है
सी टेम्परेचर लो और हाई मीन्स कैसा होता है, वहाँ पे जो वाटर वेपर होता है और यहाँ के वाटर वेपर में डिफरेंस होता है, कहने का मीन्स होता है, ठीक है। ओके, ये चीज़ें देखा। अभी जो मैंने आपको बताया कि वर्ड से रिलेटेड टोरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन, जो मैंने आपको बताया। सी टोरेट जोन होता है गर्मी ज़्यादा होती है। एट द बिगनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स लाइक समर सीजन एंड विंटर सीजन। सो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सो वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होगा। सो मैंने आपको क्या बताया कि लाइक विंटर में फिर तो होगा ही नहीं, बट इट्स रॉन्ग। विंटर में भी वाटर वेपर होता है बट कंपेयरिंग टू द समर वी आर ओनली लेस, है ना। सो ये जो पैरा है इससे रिलेटेड हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। सो हम वो टेक्स्ट बुक से देख के वो पैरा को रीड आउट करेंगे एंड देन विल डू द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस लाइक कि क्या दिया है वहाँ पे। सो अगेन गाइस आप टेक्स्ट बुक में आ जाइए। सो लुक हियर गाइस, 70.8% part of the Earth's surface is full of water. Okay, the distribution of this water is very uneven. Yes, 2 point guys. See, we can easily see guys, the distribution of the water is not the equal everywhere. हर एक जगह पे जो पानी होता है वो क्या सेम होता है? नहीं। सो दैट्स इज नोन एज द अनइवन, मतलब सब जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सब जगह पे अनइवन होता है, कहीं ज़्यादा पानी होता है तो कहीं कम पानी होता है। सो एट सम प्लेसेस द वाटर स्टोरेज इज लिमिटेड while it is ample at other places. It means the few places we are having the less storage and some places is having the high storage. कहीं पे स्टोरेज कम होता है सो पानी कम होगा वहाँ पे, कहीं पे स्टोरेज ज़्यादा होता है सो पानी वहाँ पे yes very good ज़्यादा होता है। So we see or the experience the different form of condensation has shown in the picture above. See picture above it means हमने देखा था कुछ अलग अलग तरीके का, है ना, कि किस किस तरीके से जो है पिक्चर्स थे। हमने ड्यू का देखा, फ्रॉस्ट का देखा, फॉग का देखा, राइट। तो देखा कि किस तरीके से वहाँ पे होता है, क्या होता है। ओके, और रिलेटेड टू दिस हम जो है मैप भी देखेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो सी this forms of condensation occur due to the water vapor in the atmosphere. मतलब ये जो चीज़ें होता है ना, सो ये जो चीज़ें होता है किसकी वजह से होता है? सो ये सारी चीज़ें वाटर वेपर की वजह से ही होता है। किसकी वजह से होता है? वाटर वेपर की वजह से होता है। इवन गाइस रिलेटेड टू दिस वी हैविंग द फ्यू मोर पिक्चर, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और पिक्चर भी है। सो लुक हियर गाइस, see here we having the different forms of this. see here यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा होगा, है ना। सो यहाँ पे आपको देख रहे हो आप कुछ हेल्थ स्टोन की जैसे दिख रहा होगा आपको सेकेंड पिक्चर में, एंड थर्ड पिक्चर में आप देखो कुछ फॉग के जैसा दिख रहा होगा। सी गाइस कुछ फॉग के जैसा दिख रहा होगा, है ना। सो ये क्या है, डिफरेंट तरीके से होता है। अब ये आप बोलोगे हेल्थ स्टोन होता है तो हम देखते हैं पत्थर भी गिरता है। सो हम नॉर्थ साइड में देखते हैं वहाँ पे पत्थर भी कभी कभी पड़ता है ना। ये फॉग के जैसे है, पानी जाता है ना। सो ये सारी चीज़ें कैसे होता है? ये सारी चीज़ें वाटर वेपर से ही होता है, इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा second para has the atmospheric condition change with change in the forms of condensation. So this also will happen just because of the atmospheric condition. ये सारा चीज़ें होता है किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन की होता है। जिस तरीके से चेंज होगा तो हमें किसमें चेंजेस पता चलता है? कंडेंसेशन में पता चलता है, ठीक है। सो ऑन विंटर मॉर्निंग वी फाइंड ड्यू। विंटर मॉर्निंग इट मीन्स लाइक I already given you at the beginning of this video. मैंने आपको बताया ये स्टार्टिंग के वीडियो में इसमें कि हमारा जो ठंडी का सीजन होता है वहाँ पे टेम्परेचर लेस होता है गाइस, ठीक है। अब टेम्परेचर लेस होता है सो जो हमारा वाटर वेपर होता है दिन में आफ्टरनून के बाद, सो जो वाटर वेपर होता है गाइस वो गैसेस फॉर्म में होता है, ऊपर की तरफ जाता है। अब जितना ऊपर की तरफ जाएगा तो किस में कांटेक्ट कर रहा है? ये इट्स वेरी गुड, किसी कोल्ड जगह पे कांटेक्ट। तो ऊपर हमारा टेम्परेचर लेस होता है, फिर उसके बाद वो क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो बूंद के फॉर्म में नीचे की तरफ आता है। सो अब ये सिचुएशन कब बता रहा है? विंटर के टाइम का बता रहा है कि विंटर के सीजन में आप देखोगे तो आपको ड्यू ज़्यादा पता चलता है। हाँ यस गाइस, आप देखते हो कभी पत्तों पे तो ड्यू जैसा पड़ा, मतलब बूंदें पड़ी होती है जिसको हम शीत बोलते हैं। सो वो ड्यू है, ठीक है। In areas located at higher altitude,
snowfall occurs, it means the area where having the high altitude. Altitude it means height. ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट. सो वो एरिया जहाँ पे हाइट ज़्यादा होता है वहाँ पे स्नोफॉल होता है. ठीक है. वाइल इट रेन्स इन अदर प्लेसेस, जैसे कि हमारे यहाँ पे आप मुंबई में देखोगे तो ज़्यादातर आपको बारिश ही दिखता होगा. ठीक है. ऐसे मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी लाइक कि मेनी ऑफ द प्लेसेस हैविंग ऑफ रेनफॉल. सो सम प्लेसेस एक्सपीरियंस dense fog while some experience hailstorm suddenly and face crop destructions. So related to this, now guys again come to the board. So we have studied about the distribution of water. हमने distribution of water का देखा कि किस तरीके से पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. 71% जो है सॉरी हमारा सरफेस 71% जो है पानी में है और जो बाकी का रेस्ट वो लैंड में वहाँ पे पानी में है. इट मीन्स हमारा जो सरफेस है वो 78% पानी से कवर है. ठीक है. अब ये जो प्रोसेस है लाइक ड्यू का देखा हमने, फ्रॉस्ट का देखा है ना, फॉग का देखा, तो ये सारी चीज़ें होता है किसकी वजह से? ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है और ये जो है कंडेंसेशन है. राइट. अब जैसे कांटेक्ट करते हैं किसी कूल जगह से, मैं एक एग्जांपल देती हूँ इन शॉर्ट गाइस कि आप जब वाटर बॉटल है फ्रीज से जब आप बाहर निकालते हो, सो सी जब तक फ्रीज में रहता है तब तक वो एक कूलिंग पॉइंट पे होता है. पर जब बाहर निकालते हो उसको, सो बाहर के टेम्परेचर से क्या करता है? कांटेक्ट करता है. सो आप देखते हो वाटर बॉटल जो रहता है अंदर तो फ्रीज रहता है बट उसके ऊपर आप देखोगे तो कुछ ड्यू जैसा दिखता है, कुछ बूंदे जो है वो बाहर की तरफ निकलना चालू हो जाती है, गिरती है. या फिर आप किसी कोई पेप्सी आप लिए रहोगे या कोई थम्स अप बॉटल लिए रहोगे, सो जब तक वो फ्रीजर में रहता है तब तक उस पर ड्यू नहीं रहता है. ठीक है. जब वो बाहर की तरफ आता है सो बाहर के मतलब बाहर की एयर से या बाहर के टेम्परेचर से क्या करता है? कांटेक्ट करता है. जब कांटेक्ट करता है तो उसकी जो अंदर की जो टेम्परेचर होती है वो क्या होती है? बाहर के टेम्परेचर से डिफरेंट होती है. सो क्या किस फॉर्म में बाहर की तरफ निकल के आता है? सो वो ड्यू के फॉर्म में बाहर की तरफ बूंदे बूंदे आप देखते रहोगे, बूंदे बूंदे नीचे की तरफ गिरता है. ठीक है. सो ये क्या है? इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन. अलग अलग फॉर्म में है. ठीक है. So till here we have studied in short about the precipitation. Also we have seen the definition as well as what is precipitation. Right. Now for the next video we'll see the further one. इसके आगे हम देखेंगे we having the types of rainfall. हमारे पास इस वीडियो में जो है इस वीडियो मीन्स इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल, जो कि 3 अलग अलग टाइप्स के रेनफॉल है, हम आगे की वीडियो में देखेंगे. सो आज के लिए विल स्टॉप हियर टिल द डेफिनेशंस एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेशंस. नाउ फॉर द लास्ट स्टेज ऑफ योर होमवर्क, सो यू प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क गाइस. सो हियर डेफिनेशन दिया है ना, आपको यही होमवर्क में लिखना है. लाइक राइट द डेफिनेशन. सो यू हैव टू गिव दिस 2 लाइन अबाउट द डेफिनेशन एंड द लास्ट व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. आपको ये लिखना है व्हाट इज प्रेसिपिटेशंस. आंसर इज ऑलरेडी गिवन हियर, सो यू हैव टू कॉपी डाउन फ्रॉम हियर. आपको यहाँ से ही कॉपी डाउन करना है. सो आज के लिए आपका यही है और ये आपका होमवर्क भी है. फाइन. फॉर द नेक्स्ट विल सी नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.